मेरे साथ क्या होने लगा कि अगर मुझे वॉशरूम जाना है और मैं अपना पाँव नीचे रखता था तो इन माई इमेजिनेशन, इन माई थॉट्स, आई यूज्ड टू सी these two hands come and grab my legs. And what started happening in my imagination, I would see, जैसे ही मैं अपने बिस्तर से पाँव नीचे रखता, दो हाथ आएंगे और मेरी टांगों को पकड़ लेंगे. मैं नहीं सोच रहा हूँ ये. I wasn't thinking. It's running this. like a movie. वो एक मूवी की तरह चल रहा था. So I ignored it. मैंने उसको नजरअंदाज किया. फिर अगली रात सेम चीज हुई. Next night the same. In the middle of night when I have to go to washroom, I'll get up, I see these two hands. आधी रात को जब उठा तो मैंने देखा वो दो हाथ. फिर अगले दिन ये हुआ. Then I understood this is not normal. तब मैं समझ गया ये साधारण बात नहीं हो रही है. Pictures or spontaneous thoughts are the way spirit realm is trying to communicate to you. तस्वीरें या अचानक आने वाले विचार तरीका है जैसे आत्मिक दुनिया आपसे बात करती है. आपने कोई एक्सीडेंट देखा, एक थॉट आया, तेरे साथ भी ऐसी होगा. You saw an accident, the thought What came, is that? this will happen to you. That's the enemy trying to put a lie, a thought in your heart. वो दुश्मन है जो आपके दिल में एक झूठ डालना चाहता है. Do you know that every depression started with the wrong thought? क्या आपको पता है हर एक डिप्रेशन की शुरुआत एक गलत विचार से हुई थी. It always starts with a thought. A person who committed a rape, it started with one thought. A person who went into drugs, it started with one thought. एक व्यक्ति जिसने रेप किया वो एक विचार से शुरू हुआ था. एक व्यक्ति जो ड्रग्स में चला गया एक विचार से शुरू हुआ था सब. So then I thought, okay, मैं समझ गया शैतान क्या कर रहा है. मैंने शैतान तू ये कर रहा है ना, अब देख मैं क्या करूंगा. अगली रात जब मैं उठा, same two hands came. I formed an imagination. I understood what the devil is doing. So next night when I woke up, when the two hands came, I imagined एक हाथ आ रहा है तलवार के साथ और उन दोनों हाथों को काट रहा है. I imagined a hand comes with a sword and cuts off those two hands. Okay? मुझे बहुत मेहनत करके ये हर रोज करना पड़ा क्योंकि वो बार बार ऐसा हो रहा था. वो हाथ आ रहे थे, फिर मैं इमेजिन करता वो उसको काटते. I had to put effort into it every day and I would see the hand come with a sword and cut those two hands. मगर जैसे मैंने वो हफ्ता 2 हफ्ता साथ में करा वो ऑटोमेटिक हो गया. But after a couple of weeks when I did it, it became automatic. वो इमेजिनेशन बंद नहीं हुई. The imagination was not. जैसे मैं पाँव नीचे रखता वो हाथ आते, उसके बाद ऑटोमेटिक अब ये हाथ आता और उसको काट देता. It started to run like a picture every day. The moment I put my feet down, those two hands would come and this hand comes and cuts those two hands. वो एक तस्वीर की तरह चलने लगा. ये कहाँ पे हो रहा था? इमेजिनेशन के realm. This was happening in the realm of imagination. अब मैं अफ्रीका में, युगांडा में, अब मैं गांव में था. Now I was in Africa in Uganda in a village. वहाँ मैं बेड में था बैठा. I was there on the bed. और मैं कुछ सोच भी नहीं रहा हूँ, कुछ किसी और चीज के बारे में सोच रहा हूँ. And I saw these two hands now with my open eyes. These two hands came and grabbed my legs. I wasn't even thinking about anything. ये दो हाथ आए, इन्होंने मेरी टांगों को पकड़ लिया. The Bible calls it open-eyed vision. बाइबल इसको खुली आंखों का दर्शन कहती है. Okay? Where your natural senses are not suspended. जब आपकी स्वाभाविक ज्ञानेंद्रियां. So वो जो दो हाथ आए उन्होंने मेरा पाँव पकड़ा. इस बारी जब मैंने उन दोनों हाथों को देखा, I could see in HD या 4K resolution. But this time when I saw those two hands, मैं उनको 4K resolution. जब मैं अपनी imagination में देखता था, they were hazy, they were not clear. In my imagination वो साफ नजर नहीं आते थे. अब जब मैंने देखा तो क्या देखा? Now when I saw them, clear. they were clear. जैसे उन हाथों ने मेरा पाँव पकड़ा. Now this time I used to imagine a human hand. This time when they held my feet. पहले मैं क्या करता था? मैं एक इंसान के हाथ को imagine करता था. अब जब उस विजन में मैंने क्या देखा? A hand which was made of pure light and that sword made of pure light. It cut those hands and I heard a resounding voice in my room and it said, "My son, this curse will not go to your coming generations." जैसे ही वो हाथों ने आके मेरे पाँव को पकड़ा, मैंने एक ज्योति के बने हाथ को और ज्योति की तलवार को देखा जिसने उन हाथों को काट दिया. और मैंने इस आवाज को गूंजते हुए सुना कि मेरे बेटे, ये श्राप तेरी पीढ़ियों में नहीं जाएगा. Amen. I'm telling you, you do it. If you don't believe it, do it for some days. अगर See what नहीं happens. मानते The spiritual realm will open up. अगर नहीं मानते हो करके देखो कुछ दिन. That's why do you think there are dirty movies? क्यों आपको लगता है कि यंग लोगों को शैतान ने porn, dirty movies, filth? क्यों? Because if your imagination is corrupted, you can never encounter the Heavenly Father.
ये गंदी मूवीज इसीलिए हैं क्योंकि अगर किसी की कल्पना ही भ्रष्ट है तो वो कभी अपने पिता का साक्षात्कार नहीं पाएगा। Because imagine, the imagination are the eyes of your heart. अगर यहाँ कीचड़ है तो आपको क्लियर नहीं दिखाई देगा, आपको गंदा ही दिखाई देगा। कल्पना आपकी आत्मा की आंखें हैं। If there's dirt here, you will not be able to see clearly. You will see hazy. Amen? जो आप यहाँ देख रहे हो ये कैसे हुआ है? लोग कहते हैं ये कैसे हो रहा है? What you are seeing ये here, ऐसे हो रहा है कि जब 10 लोग होते थे तो मैं अपने कमरे में जब प्रार्थना करता था तो मैं देखता था हजारों लोग बैठ के परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं। what you are seeing happening, how has this happened? When there were 10 people in the church, I used to imagine thousands of people are sitting and hearing the word. Because for God our imagination becomes our reality. क्योंकि परमेश्वर के लिए हमारी कल्पना हकीकत बन जाती है। और मैंने आपको क्या कहा था? And I told you, जब हम 10 लोग थे when we were 10 people, तब मैं 200 देखता था। I used to see 200. फिर जब हम 200 हुए We were 200. तो मैं 500 देखता था। I saw 500. जब हम 500 हुए When तो we मैं were 1000 500, देखता I था। saw 1000. अब जब हम 10,000 हैं When we are तो मैं 10,000, स्टेडियम्स भरे हुए देखता हूँ I यीशु see के नाम में। stadiums filled in Jesus' name. Amen. और आपको एक गुड न्यूज़ दें, And there's a good news. बहुत जल्दी Very soon, we are believing हम मान रहे हैं within few months कुछ महीनों में we will go to our new land and worship the Lord. कुछ ही महीनों में हम अपनी नई भूमि पर जाएंगे और आराधना करेंगे। Amen. बिल्डिंग का वेट करना है या ओपन में चलें? टेल मी। God has, I think God has removed the walls from the church. मुझे लगता है परमेश्वर ने दीवारें हटा दी हैं इस कलीसिया से। Amen. I'm telling you, before this year ends, there will be, you will see 40,000 people worshiping Jesus in the new land. इस साल के खत्म होने से पहले आप 40,000 लोग देखेंगे नई लैंड पे आराधना करते हुए। Amen. Do you know you cannot believe anything without your imagination? आप जानते हैं आप अपनी कल्पना के बिना कुछ भी नहीं मान सकते। That's विश्वास what many people don't understand. They think faith is मान लेना। हाँ, मान लिया। Yes. No. Faith is not just mental agreement. Faith is to see the unseen before it becomes seen. बहुत से लोग समझते हैं विश्वास faith is just to say yes I agree but it's not. वो देख लेना है जो अदृश्य है। तो मैं आपको इनवाइट करता हूँ, So I invite you प्रभु आपको वो दिखाए जो मैं देख रहा हूँ अभी। that God shows you what I am seeing. आपने देखा अभी हम रांची गए थे, You saw me 5 when लाख Ranchi. लोग। वहां के हेल्थ मिनिस्टर ने बोला इतने लोग मैंने देखे ही नहीं आज तक। We were in Ranchi recently. 5 lakh people were there, and the health minister said, "I have not seen so many people till date." हाँ, परमेश्वर का राज्य फैल रहा है The kingdom of God is और कोई expanding, इसको रोक नहीं पाएगा। and no one will be able to stop it. कोई भी इसको रोक नहीं पाएगा। No one will be able to stop it. Amen. और अभी बहुत जल्दी हम राउकेला जा रहे हैं Very soon we'll go to Raukela, और वहां पे हमें बता रहे हैं 7 लाख लोग आ रहे हैं। and they're saying 7 lakh people will gather there. Amen. कुछ लोग बोलते हैं आप क्या क्रिश्चियन बना रहे हो? हम कहते हैं नहीं, हम क्रिश्चियनों को वापस ला रहे हैं परमेश्वर के राज्य में। Some people say, "Are you converting to Christians?" And we say, "No, we are bringing Christians back into the kingdom." We are converting the Christians. हम Christians को convert कर रहे हैं। हाँ, हम ईसाइयों को वापस पिता के प्रेम में ले जा रहे हैं। We are bringing Christians back to the love of God. Hallelujah. Amen. Okay. Last, and then we'll close, and then we'll pray for you. 1 Samuel 16:7. पहला शामुएल 16 उसका 7। The Bible says, "Man looks at the outward appearance, बाइबल but कहती the है Lord looks at the heart." मनुष्य बाहरी रूप को देखता है लेकिन परमेश्वर दिल को देखता है। Do you know you are limited by your imagination? आप जानते हैं आप अपनी कल्पना के कारण सीमित हैं। If you have a business, your business is limited by your imagination. अगर आपके पास बिजनेस है, आपका बिजनेस आपकी कल्पना की वजह से सीमित है। Hear this.
सुनिए, ध्यान से सुन रहे हैं आप? इफ यू कैन सी इट यू कैन पोजेस इट. अगर आप देख सकते हो तो कब्जा कर सकते हो. Did you hear what I just said? सुना जो मैंने कहा? If you can see it, अगर आप you देख सकते हो can possess it. तो आप कब्जा कर सकते हो. So when you pray, your prayer should be, God, show me what my answer looks like. Not कि प्रभु दे 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 दे. जब आप प्रार्थना करते हो तो कहो पिता मुझे दिखाओ कि मेरा उत्तर कैसा दिखता है, ये नहीं कि गॉड गिव मी. Vague prayers usually don't get answered. जो ऐसी प्रार्थनाएं होती हैं उनका अक्सर उत्तर नहीं मिलता है. Sometimes people come and say, Pastor, can you pray for me, Pastor? कई बार लोग कहते हैं पास्टर प्लीज मेरे लिए प्रार्थना करोगे? Yes, sister. What हाँ should I बहन, pray for you? किस चीज के लिए प्रार्थना करूं? Anything, Pastor. Anything. कोई भी चीज प्रार्थना कर दो. That's a waste of time. समय बर्बादी है ऐसी प्रार्थना करना. एक अंधा यीशु के पास आ रहा अब है. हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पे रहम कर. अंधा है वो. A blind man comes to Jesus, oh son of David, have mercy on me. और यीशु क्या कह रहे हैं उनसे? And what is Jesus saying? तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? What do you want that I should do for you? अरे यीशु आपको दिखाई नहीं दे रहा? अंधा है भाई वो. Jesus, can't you see he is blind? No. You have to be specific about what you want God to do for you. आपको सटीक रूप से पता होना चाहिए क्या चाहते हो आप जो परमेश्वर आपके लिए करे. एक परमेश्वर के दास, आप उनके बारे में पढ़ सकते हैं अगर आप नहीं जानते. डॉक्टर पॉल योंगी चो. You can वो read about एक man of God. बुद्धिस्ट थे. वो मर रहे थे. उनको क्या बोलते हैं, ये ट्यूबरक्लोसिस था. क्या बोलते हैं, ये ट्यूबरक्लोसिस था. लास्ट स्टेज मर रहे थे. एक छोटी लड़की आई और उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया और वो चंगे हो गए. एंड दिस मैन बिल्ड द बिगेस्ट चर्च इन द वर्ल्ड. कोरिया में अभी वहां पर करीबन 14-15 लाख मेंबर्स हैं. 14-15 लाख मेंबर्स हैं उस चर्च में. Dr. Paul Yonggi, who was a Buddhist, he was dying of TB, and a small girl came and told him about the Lord Jesus. He got saved, और आज and there are 14-15 lakh members in his church. और वो चर्च कहाँ पे शुरू हुआ था? स्लम्स में. And the church started in slums. उनके पास एक बिस्तर और टेबल भी नहीं था. नीचे जमीन में सोते थे, इतने गरीब थे. He did not even have a bed or a table. He was so poor he used to sleep on the ground. And this church today has more than 50,000 multimillionaires in the church. और आज उस कलीसिया में 50,000 मल्टीमिलियनेयर से ज्यादा. और एक बार कोरिया की गवर्नमेंट को इकोनॉमिक क्राइसिस आई तो चर्च ने बोला हम पैसा देते हैं आपको. And one time the Korean government had an economic crisis and the church said we will help you. Amen. And when I say the word church, जब मैं don't church think कहता about the हूँ religious church. तो धार्मिक चर्च मत सोचना. It's not a building. वो बिल्डिंग नहीं है. हम यहाँ से चले जाएंगे, We will go from here. चर्च जाएगा, बिल्डिंग यहीं रह The जाएगी. church will go, the building will The remain. church, बाइबल में जो चर्च है वो ग्रीक वर्ड है एक्लीसिया. The biblical word for church is ecclesia. मतलब ग्रीक उसको ऐसे बोलते हैं. एक बार मैं वो ग्रीक तो कहते हैं नो 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 ब्रदर, दैट्स नॉट हाउ यू से एक्लीसिया. एक ग्रीक भाई थे, वो नाराज होकर कहते हैं ऐसे नहीं बोलते, इसको ऐसे बोलते हैं. कैसे बोलते हैं? बोलो एक्लीसिया. एक्लीसिया मीन्स द गैदरिंग ऑफ हिज कॉल्ड आउट वंस. जिसको परमेश्वर ने चुना है, चुन के बुला